السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آج کی یہ سچی کہانی ہے ایک بہت ہی معصوم اور بہت حسین لڑکی کی، لیکن اس کا حسن اس کا دشمن بن گیا۔ اپنے اس دشمن کو اس نے کیسے عجیب انداز میں ہرایا، اس کا حربہ کتنا مؤثر ثابت ہوا، یہ کہانی سنا رہا ہے اس لڑکی کا محبوب۔ آئیے مل کر یہ سچی کہانی سنتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے چینل سعید وائس کو سبسکرائب کریں اور بیل کو ضرور دبایا کریں۔ اس کے پورے بدن پر نیل پڑے ہوئے تھے اور میں اس کی حالت دیکھ کر کانپ رہا تھا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو جس نے اس کا یہ حال کیا تھا اس کا بھی یہی حال کرتا۔ اس کو اس حال میں دیکھ کر واقعی میں کانپ اٹھا تھا۔ عالیہ نام تھا اس کا، ایک خوبصورت، نازک اور ذہین لڑکی، یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی تھی اور وہ یونیورسٹی بہت ہی مشہور تھی۔ میری اس سے ملاقات ایک ایسے فنکشن میں ہوئی تھی جس میں مجھے زبردستی بلایا گیا تھا، جبکہ میں اس قسم کی تقریبات سے کترایا کرتا تھا۔ وہ سامنے والی قطار میں بیٹھی ہوئی تھی، یونیورسٹی کی دوسری لڑکیوں کے ساتھ، اور سنگر پرفارمنس کے ساتھ ساتھ تالیاں بجا رہی تھی۔ میں نے جب اس کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس میں بلا کا چارم تھا، زندگی سے بھرپور وہ لڑکی مجھے بہت اچھی لگی۔ حالانکہ اس کے ساتھ اور بھی لڑکیاں تھیں، لیکن اس میں جو کشش تھی وہ کسی میں بھی نہیں تھی، یا پھر حسن دیکھنے والے کی نگاہوں میں ہوا کرتا ہے۔ عالیہ مجھے ایک بار پھر ملی، اس کے بعد بھی ملی، اور میں اس کی صورت، ذہانت وغیرہ کا دیوانہ ہوتا چلا گیا۔ وہ ایک پڑھے لکھے خاندان کی بیٹی تھی۔ اس کے والد صاحب کالج میں اردو ادب کے استاد تھے اور بہت اچھے شعر کہا کرتے تھے۔ یہ اتفاق ہے میں عالیہ سے ملاقات سے پہلے بھی اس کے والد صاحب کی شاعری کا دیوانہ تھا اور ان کے درجنوں اشعار مجھے یاد تھے۔ اس لیے جب میں نے عالیہ کو اس کے والد صاحب کے اشعار سنانے شروع کیے تو وہ حیران رہ گئی۔ واہ سہیل صاحب، آپ نے تو پاپا کو اچھی طرح پڑھ رکھا ہے۔ ہاں، بہت اچھی طرح، اور اب میں ان کی صاحبزادی کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں مسکرا کر بولا، بہت مشکل ہے جناب، آپ مجھے اتنی آسانی سے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ میں کوئی کتاب نہیں ہوں جس کو ایک بار میں پڑھ کر ختم کر دیں۔ ہاں، یہ تو میں بھی جانتا ہوں، میں نے اس کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ بقول پروین شاکر، حسن کے سمجھنے کو ایک عمر چاہیے جانا، حسن کے سمجھنے کو ایک عمر چاہیے جانا، دو گھڑی کی چاہت میں لڑکیاں نہیں کھلتی۔ تو ہمارے درمیان اس قسم کی شاعرانہ باتیں ہوا کرتی تھیں۔ میں نے یہ سوچ لیا تھا اور پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں اپنی زندگی کی ساتھی اسی کو بناؤں گا۔ عالیہ اسی قابل تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میرے یا اس کے گھر والے اس رشتے پر انکار نہیں کریں گے۔ ہم دونوں کے درمیان دوستی کی بہت خوبصورت راہیں طے ہو رہی تھی کہ اچانک وہ سب کچھ ہو گیا جس کا تصور میں کر نہیں سکتا تھا، کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ میرے سامنے آج پورے بدن سے کانپ رہی تھی، اس کے پورے جسم پر نیل کے گہرے نشان تھے۔ میں تو اس کا یہ حال دیکھ کر دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ عالیہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ خدا کے لیے بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ کس نے تمہارا یہ حال کیا؟ بے درد اور ظالم لوگوں نے، اس نے بتایا۔ کون بے درد اور ظالم لوگ؟ وہ بہت طاقتور لوگ ہیں سہیل، وہ ہچکیوں سے روئی جا رہی تھی۔ ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، خدا کے لیے عالیہ مجھے پوری بات بتاؤ۔ پھر اس نے اپنی جو کہانی سنائی وہ سن کر میرا دل لرز گیا، میرا دل کرچی کرچی ہو گیا۔ آخر وہ میری محبت تھی اور اس کا یہ بھیانک انجام۔ اس نے بتایا کہ میں ایک دن یونیورسٹی جانے کے لیے بس اسٹاپ پر کھڑی ہوئی تھی۔ اچانک مجھ سے کچھ فاصلے پر ایک گاڑی آ کر رک گئی۔ اس کے شیشے کالے تھے، یعنی ان کے اندر دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ دو آدمی اترے، میرے قریب آ گئے اور بالکل میرے پاس آ کر ان میں سے ایک نے خاموشی سے گن نکال لی۔ چلو گاڑی میں بیٹھو، جلدی، ایک نے کہا، ورنہ یہی مار کر پھینک دوں گا۔ سہیل میں اس وقت اتنی خوفزدہ تھی کہ سکتے میں آ کر رہ گئی۔ آس پاس اور بھی لوگ تھے لیکن کسی کا دھیان ہماری طرف نہیں تھا۔ جلدی کرو، وہ گھبرایا۔ میں مجبور ہو گئی۔ جس طرح کسی پر جادو کر دیا جاتا ہے، ٹرانس کر دیا جاتا ہے، وہی کیفیت تھی میری۔ میں ان دونوں کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ ان میں سے ایک ڈرائیور کی سیٹ پر تھا جبکہ دوسرا پچھلی سیٹ پر میرے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک گن میری کمر سے لگا رکھی تھی۔ بالکل خاموش رہنا، چیخنا چلانا نہیں، اس نے دھمکی دی، ورنہ یہی مار کر لاش سڑک پر پھینک دوں گا۔ نہ جانے کتنی لاشیں اسی طرح پڑی ہوئی ملتی ہیں، ایک تمہاری بھی صحیح۔ گاڑی چلتی رہی، مجھے کوئی ہوش نہیں تھا، ایک سکتے کسی کیفیت تھی۔ ہم یونیورسٹی سے بھی آگے، بہت آگے چلے گئے۔ میرا ذہن سائیں سائیں کر رہا تھا، کون تھے یہ لوگ؟ مجھے کہاں لے کر جا رہے تھے؟ مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ بہت دیر بعد ایک ایسی بستی میں ہم پہنچ گئے جہاں کے مکانات بہت ہی خراب تھے۔ مجھے اس وقت ہوش آیا اور میں گاڑی سے اتر کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس وقت انہوں نے گاڑی ایک مکان کے سامنے روک لی تھی۔ جب انہوں نے مجھے گاڑی سے اتارا،
उस वक्त मैंने भागने की कोशिश की थी। उनमें से गन वाले ने बड़ी बेरहमी के साथ मुझे इतनी जोर का थप्पड़ मारा कि मैं तड़प कर एक तरफ जा गिरी। अब मैं इस काबिल नहीं थी कि एहतजाज करती। वो मुझे घसीट कर अंदर ले गए और मेरे साथ वो सलूक हुआ जो कि मैं बता नहीं सकती। अपने आप को बचाने की कोशिश की, फिर उन्होंने मुझे इतना मारा कि मेरे पूरे बदन पर नील पड़ गए। तुम खुद देख सकते हो कि मैं किस कर्ब से गुजर रही हूँ। वो रो रही थी और मेरा खून खोल रहा था। इतनी अच्छी, इतनी प्यारी, मुहज्जिब और अच्छे खानदान की, सादी सी, शरीफ सी लड़की के साथ ऐसा सलूक। ये 2 कौड़ी के जाहिल, वहशी, गवार गुंडे उसे उठाकर ले जाते हैं और उसके बदन को झंझोड़ कर रख देते हैं, जबकि मैं तो कभी प्यार से उसका हाथ थाम लिया करता था जिस पर वो मुस्कुरा दिया करती थी। और उन जालिम गुंडों ने उसकी इज्जत को इस तरह पामाल करके रख दिया। किस हक से? आलिया बताओ, कौन थे वो लोग? मैंने फिर पूछा। सब फजूल है। उसने एक गहरी सांस ली। तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो एक सियासी पार्टी के बहुत ताकतवर लोग हैं। यहाँ का कानून भी उनका कुछ नहीं कर सकता है। पुलिस भी उनके कब्जे में है, उनसे खौफजदा रहती है। एक बात बताओ, मेरी आवाज़ उस वक्त कांप रही थी, क्या वो दोनों भी उस जुर्म में शरीक थे? नहीं, वो सिर्फ मुझे गन दिखाकर अपने साथ ले गया था, जिसने मुझ पर गन तानी हुई थी, जबकि मैं दूसरे कमरे में किसी और के साथ थी। दूसरे कमरे में वो जाकर बैठ गया था। मेरी चीखें गूंजती तो उसकी हंसी की आवाज़ बुलंद होती जाती थी। दूसरे कमरे में बैठा वो मुझे बेआबरू करने वाली की हौसला अफजाई करे जा रहा था। उसके बाद उसने फिर रोना शुरू कर दिया। अब मेरा क्या होगा? मैं तो कहीं की नहीं रही। किसी लड़की के पास सिर्फ उसकी इज्जत होती है, वो भी नहीं रही। मैं क्या करूँगी? मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही सुहेल। मैंने उन्हें बद्दुआएं दी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। बद्दुआओं से कुछ नहीं होगा। मैं तल्ख होकर बोला, जब से ये दुनिया बनी है तब से अब तक मैंने कभी नहीं देखा न सुना कि किसी ने किसी लड़की को बेआबरू किया तो उस पर बिजली गिर पड़ी, या वो मफलूज हो गया, या वो बर्बाद हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो अपने काम करके मूंछों पर ताव देकर किसी और की तलाश में निकल जाता है। अल्लाह के यहाँ जवाब तो देना होगा। इस बहस को छोड़ो, मैंने कहा। वो देता रहे अल्लाह के यहाँ जवाब। तुम तो बेआबरू हो गई। तुम्हारी जिंदगी तो बर्बाद कर दी ना उसने। तुम बताओ, तुमने उसका क्या बिगाड़ा था? यही ना कि तुम कमजोर थी, एक नाजुक सी लड़की, और उसने तुम्हारी उस कमजोरी और नजाकत का फायदा उठा लिया। सुहेल, खुदा के लिए मेरी मदद करो। मैं खुदकुशी भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं भी मरना नहीं चाहती। नहीं, ये ख्याल भी दिल में नहीं लाना। तुम मर भी गई तो क्या उनकी सेहत पर असर पड़ेगा? कुछ भी नहीं। तो फिर क्या करूँ मैं? वही जो दुनिया के हर कमजोर इंसान के नसीब में लिख दिया गया है, सब्र। सब्र करो। और क्या कर सकती हो तुम? हर कमजोर इंसान को जो कुछ नहीं कर सकता है, मजबूर होता है, वो सब्र करता है। मैं उस वक्त उसको बहुत देर तक तसल्लियाँ देता रहा, लेकिन मेरी तसल्लियों का क्या फायदा? कुछ भी नहीं। उसके साथ जो होना था वो हो चुका था। मैं उससे ये भी नहीं कह सकता था कि वो अपने घर वालों को इस हादसे के बारे में बता दे। उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी थी। फिर उसके घर वालों को भी जब ये खबर मिलती तो वो तो कहीं के नहीं रहते। मैं उसे उसके घर लेकर पहुंचा और वहां छोड़कर वापस आ गया। सोचते सोचते मेरे दिमाग की रगें फटने लगी थी। मैं उसके लिए क्या कर सकता था? किस तरह उसकी दिलजोई करता? जहां तक उसको अपनाने का सवाल था तो मैं उस इरादे पर कायम था, क्योंकि उसके साथ जो भी हुआ था उसके लिए वो बेकसूर थी। उसके साथ ज़बरदस्ती की गई थी और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं था कि उसको दुख देता रहूं। 2-4 दिनों के बाद फिर उसका फ़ोन आया। सुहेल, मुझसे फ़ौरन मिलो, मुझे बहुत ज़रूरी मिलना है। मैं उसके पास पहुंच गया। इस बार मैंने एक पुरसुकून मुकाम का इंतखाब किया जहां पर हम आसानी और आज़ादी के साथ गुफ्तगू कर सकते। सुहेल, मैं शायद मरने वाली हूँ, उसने कहा। मेरी मौत करीब आ चुकी है। तुमने फिर वही बात करना शुरू कर दी। अपने जहन से झटक दो ये बात कुछ और है सुहेल। वो होंठ दबाकर बोली। मैं अपने आप को बहुत बीमार महसूस कर रही हूँ। कुछ ऐसी खराबियाँ हो गई हैं जिनके लिए किसी डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। क्या तुम्हारी जान पहचान की कोई ऐसी लेडी डॉक्टर है जो पूरी हमदर्दी से मेरा मुआयना भी करे और राज भी रखे? मुझे अफजल भाई की बीवी का ख्याल आ गया। वो मेरे भाई तो नहीं थे, दोस्त थे, लेकिन पूरा हल्का अहबाब उन्हें भाई कहा करता था। उनकी बेगम ताबिंदा लेडी डॉक्टर थी और मेरी उनसे बेतकल्लुफी भी थी। मैं उन्हें भाभी कहा करता था। मैंने उससे कहा, हाँ, एक लेडी डॉक्टर हैं जो दोनों शराइत पर पूरा उतरेंगी तुम्हारे। तो फिर चलो उनके पास, अभी और इसी वक्त, क्योंकि वक्त ख़त्म होता जा रहा है। हम वहाँ से अफजल भाई के घर आ गए। क्लिनिक का वक्त नहीं था, इसलिए ताबिंदा घर पर ही थी और अफजल भी थे। मैंने दोनों से कहा, देखिए, आप दोनों मुझसे ये नहीं पूछिएगा ये कौन है और क्या है, बस इनका मुआयना कराना है। क्यों नहीं? ताबिंदा भाभी ने कहा। फिर आलिया की तरफ देखा। तुम आओ मेरे साथ,
वो उसे लेकर दूसरे कमरे में चली गई और अफजल इधर उधर की बातें करते रहे। उस खुदा के बंदे ने आलिया के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। वो दोनों बहुत देर के बाद कमरे से बाहर आईं। ताबिंदा भाभी बहुत संजीदा दिखाई दे रही थी। मैं नहीं जानता कि उसने आलिया में ऐसी कौन सी बात देख ली थी जिसने उसको इतना संजीदा और फिक्रमंद कर दिया था। उस वक्त अफजल ने एक काम ये किया कि वो उठकर कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद ताबिंदा ने आलिया से पूछा, तुम ये बताओ, क्या हम ये बातें सुहेल के सामने कर सकते हैं? हाँ, आप इनको सब कुछ बता दें जिस तरह आपने मुझे बताया है। सुहेल तुम्हारी ये दोस्त HIV पॉजिटिव है। इसका मतलब तो समझते हो कि ये एड्स की मरीजा है क्या? मैं चकरा कर रह गया। ये कैसे मुमकिन है? ये बहुत बदनसीब लड़की है सुहेल। ताबिंदा की आवाज़ में दुख था। न जाने कुदरत ने इसके साथ ऐसा सितम क्यों किया, जबकि किसी भी मामले में इसका कोई कसूर नहीं है। इसके बावजूद ये अपने न करदा गुनाहों की सज़ा भुगत रही है, वो गुनाह जो इसने किए भी नहीं है। इसने मुझे सब कुछ बता दिया है। अब से कई साल पहले इसको टाइफाइड हुआ था, जिसमें इसको एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिए गए थे और ज़रा सी बेपरवाही ने इसको एड्स ज़दा कर दिया था। कोई ज़रूरी नहीं कि ये मर्ज़ गलत ताल्लुकात की वजह से होता है, ये मर्ज़ गलत सिरिंज के इस्तेमाल से भी होता है। ऐसा ही कुछ इसके साथ भी हुआ है। ये उसी वक्त से एड्स की मरीज़ा हो गई थी। आसार अब इस हादसे के बाद नुमायां होना शुरू हो गए हैं। आलिया इस दौरान अपनी गर्दन झुकाए रोती जा रही थी। क्या आंसू थे उसके जो बराह रास्त दिल पर गिर रहे थे। मौत उसके करीब, बहुत करीब आ गई थी। एक सिसकती और तबाह करती हुई मौत। भाभी, इसका कोई इलाज मुमकिन है? नहीं। ताबिंदा ने अपनी गर्दन हिला दी। हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हतमी तौर पर नहीं कह सकते। इसमें इंजेक्शन तो लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये तरीका अभी इब्तिदाई मराहिल में है। 100% कामयाबी नहीं हुई है। सुहेल, इस बार आलिया बोल पड़ी। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी मौत मेरे बहुत करीब आ चुकी है। मैं आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ जा रही हूँ। ऐसा नहीं है आलिया, ताबिंदा ने कहा। मैं एड्स के मरीजों को बरसों जिंदा रहते हुए देख चुकी हूँ, लेकिन कैसी जिंदगी डॉक्टर, सिसकती, रेंगती हुई, दर्दनाक, यही होता है ना? इस बात का ताबिंदा के पास कोई जवाब नहीं था। उसने अपनी गर्दन फिर से झुका ली। पूरे कमरे में मौत किसी खामोशी थी। मैं आलिया को वापस ले आया। हम दोनों के पास कहने सुनने के लिए कुछ नहीं था। उसकी कहानी खत्म हो चुकी थी या खत्म होने वाली थी। ऐसा दुख भी शायद किसी लड़की ने बर्दाश्त किया हो। 2-4 दिनों के बाद आलिया ने मुझे फिर से फ़ोन किया और इस बार हैरत अंगेज तौर पर उसकी आवाज़ में पहले जैसी अफसुर्दगी नहीं थी। उसने मुझसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। मैंने उससे मुलाकात की। उसने एक अजीब बात बताई। सुहेल, मैंने उस आदमी से मुलाकात की है। किससे? वही जिसने मेरी इज्जत बर्बाद की है। क्या? मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं मार्केट गई थी, मैंने वहाँ उसको देख लिया। तुम सोच सकते हो उसको दोबारा सामने देखकर मेरा हाल क्या हुआ होगा। मैं बेपनाह डरी हुई थी, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मैंने एक फैसला करके उसके पास जाने का सोचा। वो भी मुझे देखकर परेशान हो गया था। शायद उसे ये खौफ था कि अब मैं हंगामा करने वाली हूँ या मैं कुछ आदमियों के साथ हूँ। लेकिन जब मैंने मुस्कुराकर उसे मुखातिब किया तो वो हैरान रह गया। घबराओ नहीं, मैंने उससे कहा। मैं तो कई दिनों से आपको तलाश कर रही हूँ। मुझे तुम्हारा घर याद नहीं था, वरना मैं खुद पहुँच जाती। लेकिन क्यों? उसने परेशान होकर पूछा। तुमसे मिलने, तुमसे बातें करने, कुछ वक्त तुम्हारे साथ गुजारने। जब उसे एहसास हो गया कि मैं कोई हंगामा वगैरह नहीं करने वाली हूँ तो उसके लहजे में वही वाला एतमाद आ गया। कमाल की लड़की हो, उस दिन के बाद भी तुम मुझसे मिलना चाहती हो। क्यों? इसलिए कि मेरी जिंदगी में इस अंदाज से आने वाले तुम पहले मर्द हो। मैंने कहा, याद रखो, औरत की फितरत बहुत मुख्तलिफ होती है। वो उसको कभी नहीं भूल पाती और उसको कभी नहीं भुला पाती जिसने पहले पहल उसके बदन को देखा हो। ओह, अब समझा। वो मुस्कुरा दिया। तो फिर क्या इरादा है तुम्हारा? वही जो मैं तुमसे कह चुकी हूँ। कुछ वक्त का साथ गुजारना चाहती हूँ और बार बार गुजारना चाहती हूँ। बस तो फिर 2 मिनट ठहर जाओ, हम साथ चलते हैं। वो खुश होकर बोला। जब वो इस किस्म की बातें कर रही थी तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसका गला घोट दूं। मेरा ख्याल है दुनिया की कोई भी गैरतमंद लड़की उस आदमी के चेहरे पर थूकना भी पसंद नहीं करेगी जिसने उसकी तौहीन की हो, जिसने जबरदस्ती उसकी इज्जत बर्बाद की हो। लेकिन वो उसकी कहानियां सुना रही थी मुझे। चलो बताओ आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ? आलिया ने कहा। मैंने एक बार फिर उसके साथ उसके घर जाने का सोचा और घर चली गई। वही सब कुछ हुआ जो पहले हुआ था, लेकिन उस वक्त वो उसकी मर्जी से हुआ था और अब मेरी मर्जी भी शामिल थी। मैं एक अजीब कैफियत में था। दिल में आई कि उसको बुरा भला कहकर वापस आ जाऊं। ऐसी लड़की का ख्याल ही तर्क कर दूं जिसको अपनी इज्जत का पास ही नहीं। सुहेल, वो एक पढ़ा लिखा आदमी है।
आलिया बताती जा रही थी, और पैसे वाला भी है, और फिर सबसे बड़ी बात है कि उसका ताल्लुक उस गिरोह या बरादरी से है जो बहुत ताकतवर है, बहुत ताल्लुकात वाला आदमी है। ठीक है आलिया, मैं उकताकर बोला, अगर तुमने इस तरह खुद को खुश रखना सीख लिया है तो ऐसा ही सही। मैं उसकी बातों से इतना बेजार हो गया था कि मैं उसके पास ज्यादा देर बैठ नहीं सका, बहाना करके उठ गया। अब मुझे उससे बेजारी हो रही थी। इसको मैंने क्या समझा और ये क्या निकली। आलिया ने इंतहा कर दी थी। शायद उसे निस्वानियत की बार बार पामाली का शौक हो गया था, यानी औरतपन के इज्जत लूटने का। उसे मजा आने लगा था। बहरहाल ये तो तय था कि अब मेरे और उसके रास्ते बिल्कुल ही अलग हो चुके हैं। अब वो मेरे किसी काम की नहीं रही, अब वो किसी और के रास्ते पर चल निकली है। फिर कई दिनों तक उसका फोन नहीं आया और ना ही कोई बात की। अब मेरा दिल ही नहीं चाहता था। हाँ, मेरे दिल में जो खलिश पैदा हो गई थी वो किसी तरह जाती तो मैं फिर अपने आप को पुरसुकून महसूस करता। आखिर मैंने उससे मोहब्बत की थी। अब मैं बिल्कुल खाली होकर रह गया था। किसी पर कोई भरोसा ही नहीं रहा था। यहाँ शायद कोई इस काबिल ही नहीं था कि उसकी पाकीज़गी पर यकीन किया जा सके। जब आलिया जैसी शरीफ लड़की उसका यह हाल था तो फिर किसी के बारे में यकीन कैसे कर सकता था मैं। एक बार फिर उसका फोन आया, तकरीबन 10 दिनों के बाद। उसने मुझसे कहा, क्या बात है सुहेल, क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं तो तुमसे नाराज क्यों होने लगा? तुमको देखने, तुमसे मिलने और बातें करने की आदत पड़ गई है। उसने कहा, तुम नहीं मिलते तो वीरानी सी महसूस होती है। क्या तुम मुझसे नहीं मिलोगे? क्या छोड़ दोगे मुझे? उसके इस अंदाज पर मैंने उससे मिलने का वादा कर लिया। मैं जब उससे मिला तो उसके चेहरे पर पहले जैसी बेचैनी और परेशानी नहीं थी। इसके बरक्स वो बहुत ही पुरसुकून दिखाई दे रही थी। सुहेल, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया है कि मैं उस आदमी से शादी करने का फैसला कर चुकी हूँ। क्या? ये खबर भी मेरे लिए एक जबरदस्त झटके की तरह थी। तुम उस आदमी से शादी करने जा रही हो जिसने तुम्हें इस हाल को पहुंचा दिया है? हाँ, कल सुबह हम कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, उसने बताया। हमने मिलजुल कर सारा इंतजाम कर लिया है, एक छोटा सा फ्लैट भी ले लिया है। उसने मेरे लिए उसको खरीदा भी है और सजाया भी है। जो उसने मेरे लिए खरीदा है उसको सजाया भी है। चलो मुबारक हो। मेरे होठों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। क्या तुम ये नहीं पूछोगे कि मैंने ऐसा फैसला क्यों किया और उसके साथ क्यों हूँ? जाहिर है उसमें कई खूबियां हैं। वो एक ताकतवर खानदान से ताल्लुक रखता है, पैसे वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो तुम्हारी जिंदगी में आने वाला पहला मर्द है। इसके अलावा एक वजह और भी है, उसने कहा। क्या अगर किसी औरत की ऐसी बुरी तरह से तौहीन कर दी जाए तो क्या उसे उस जालिम से बदला लेने का कोई हक नहीं है? लेकिन ये कैसा बदला है? सुहेल, ये तुम क्यों भूल गए हो कि मैं एड्स की मरीजा हूँ? और खुद अंदाजा लगा लो कि मुझसे शादी करने के बाद उसका हशर क्या होने वाला है। मैं कांप कर रह गया। आलिया ने बदला लेने की जो प्लानिंग की थी वो शख्स के पूरे घराने को तबाह कर देती। वो घुल घुल कर मर जाता। ऐसे लोग अपनी ऐसी बेबसी से जिंदगी गुजारते हैं और बेबसी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, कभी कभी मार भी डालते हैं। अंजाम यही था कि वो या तो मुल्क छोड़कर फरार हो जाता या फिर खुदकुशी कर लेता। औरत कभी अपनी तौहीन नहीं भूलती सुहेल। कुदरत ने मुझे एड्स की मरीजा बनाकर मुझ पर एक ऐसा एहसान किया है कि मैं बता नहीं सकती। मेरे सीने में दबी हुई आग अब उस जलील आदमी को मरीज बना देगी। एड्स का मरीज, हमेशा के लिए ठंडी हो जाएगी वो आग। ये था एक ऐसी लड़की का अंजाम जो बहुत खूबसूरत थी, ज़हीन थी, शरीफ थी, जिसको देखकर उसको हासिल करने की ख्वाहिश की जा सकती थी। अल्लाह जाने तकदीर उससे क्यों नाराज़ हो गई थी। उसके बाद फिर आलिया कहीं नहीं मिली। उसका कुछ पता नहीं चला। वो घर से गायब हो गई थी। उसके घर वाले बहुत दिनों तक उसे तलाश करते रहे, फिर थक हार कर खामोश हो गए। अल्लाह जाने वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी, जिंदा भी होगी या नहीं, या शायद दोनों ही एड्स के हाथों अपनी तवानाई खोकर किसी मोहताज खाने में पड़े होंगे। अल्लाह जाने।